Good morning, student. Welcome to the engineering thermodynamics. Today, in last lecture, we start with unit second, like second law of thermodynamics, in which we studied first limitations of first law of thermodynamics. In limitation of first law of thermodynamics, first the law does not specify inner direction, or second, that is heat and work are not mutually convertible. This is the limitations of first law of thermodynamics, which used to uh, solve the second law of thermodynamics, which used to define the second law of thermodynamics. After that, we studied different devices like heat engine, heat pump, refrigerator. In heat engine which used to produce work. Okay, after that, okay, second law of thermodynamics, in which we studied limitations. After that, definitions: reservoir, heat source, and sink. Source, that is high temperature, which supplies heat; sink, which rejects heat, and which absorbs heat, and which is at lower temperature. After that, we studied different devices like heat engine, heat pump, refrigerator. Okay, in engine, that is used to produce work at the expense of heat energy, and some amount of heat is rejected to the surrounding. Okay, after that, we studied refrigerator. A refrigerator which is used to maintain lower temperature in the refrigerator space, and so it extracts heat from the refrigerator space. So output is Q2, amount of heat rejected from the refrigerator, and input is the work done. After that, we studied heat pump. Okay, heat pump which is used at a device which transfer heat from lower temperature reservoir to higher temperature reservoir, like water pump which supply heat from low level to high level. So output is how much amount of heat is supplied to the upper reservoir, that is a Q1. Okay, so output is a Q1 and input is a work done. Okay, this after this we studied. Okay, now we study the numericals on these devices. Okay, we start with the numericals. For this numericals, we studied different formulas like engine which is output is work done, engine which produce work at the expense of heat energy, that is a Q1. So output is a work done and input is a Q1. Work done is equal to Q1 minus Q2 upon Q1. So in terms of temperature, T1 minus T2 upon T1. Like heat pump, COP is equal to Q1 upon W. Okay, Q1 means amount of heat supplied to the higher reservoir, that is a pump, so that is Q1, and input is a work done. Okay, similarly refrigerator, amount of heat rejected from the lower region, that is a refrigerator space, so Q2 is the output and work done is the input. Okay, this is the formula we use to solve the numericals. Okay, start with the numericals. First numerical: a heat engine receives heat at the rate of 1500 kJ per minute and gives an output of 8.2 kilowatt. Determine thermal efficiency and rate of heat rejection. Okay, now we start with the givens. Okay, first what should we they given. Okay, first they given a heat engine रिसीव्स हीट. ओके, हीट इंजन की डायग्राम निकाल दी मैंने लेफ्ट साइड में. देखो हीट इंजन क्या कर रही है, रिसीव हीट कर रही है. मतलब क्या होगा, Q1 अमाउंट ऑफ हीट हीट इंजन रिसीव कर रही है. सो Q1 इक्वल टू क्या होगा, 1500 किलो जूल पर मिनट. ओके, अभी जो किलो जूल पर मिनट है उसको मैं क्या कन्वर्ट करूंगा किलो जूल पर सेकंड. उसके लिए क्या करूंगा, डिवाइड बाय 60 कर दिया, तो मुझे कितना मिला, 25 किलो जूल पर सेकंड, दैट इज 25 किलो वैट. किलो वैट मीन्स किलो जूल पर सेकंड. ओके, वर्क एंड गिव्स एन आउटपुट. इंजन क्या आउटपुट देता है, वर्क डन. सो वर्क डन इज इक्वल टू कितना दिया है, 8.2 किलो वैट, दैट इज 8.2 किलो जूल पर सेकंड. ओके, पूछा क्या है, इफिशियंसी. इफिशियंसी क्या रहती है, आउटपुट बाय इनपुट. आउटपुट क्या है, इंजन का वर्क डन है. इनपुट क्या है, हीट सप्लाई, दैट इज Q1. सो W अपॉन क्या होगा, Q1 होगा. W तो आपको दिया है 8.2 और Q1 भी पता है 25. तो इफिशियंसी जो मिलने वाली है मुझे 0.328, लेकिन इफिशियंसी लिखते हैं परसेंटेज में. सो उसको क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई बाय 100. सो 32.8% मुझे क्या मिली, इफिशियंसी. अभी क्या निकालना है, रेट ऑफ हीट रिजेक्शन. मतलब क्या निकालना है, हीट इंजन कितने अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब किया, Q1, उससे क्या प्रोड्यूस किया, वर्क डन, और सम अमाउंट ऑफ हीट क्या कर दे, रिजेक्ट टू द सिंक, दैट इज लोअर रिजर्वायर. सो Q2 इक्वल टू क्या होगा, W इज इक्वल टू क्या है, Q1 माइनस Q2.
सो Q2 इक्वल टू क्या होगा, Q1 माइनस डब्ल्यू। ओके, Q1 25 है, W 8.2 है। सो Q2 इक्वल टू क्या मिलेगा, 16.8 किलो जूल पर सेकंड, दैट इज रेट ऑफ हीट रिजेक्शन। ओके, नाउ वी स्टार्ट विद द नेक्स्ट न्यूमेरिकल। फाइंड द COP, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस आपको पूछा है। ओके, एंड हीट ट्रांसफर रेट, दैट इज आपको Q भी पूछा है। ओके, Q हीट ट्रांसफर रेट इन द कंडेंसर ऑपर रेफ्रिजरेटर इन किलोजूल पर आवर। ओके, आपको किस में पूछा है, यूनिट में किलोजूल पर आवर के हिसाब से मिलता है। ओके, आपको एक इक्वेशन बता देता हूँ, 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट। ओके, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड। सो 1 आवर इक्वल टू 3600 सेकंड, दैट इज 60 इंटू 60। ओके, यूनिट कन्वर्जन के लिए चाहिए। ओके, अभी यहाँ पे क्या दिया है देखो, which has a refrigeration capacity of 12,000 किलोजूल पर आवर। रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी मतलब क्या है, अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्टेड फ्रॉम द रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर लोअर टेम्परेचर रीजन में रहता है, मतलब Q2 सेकंड रीजन। ओके, तो अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्टेड फ्रॉम द रेफ्रिजरेटर रीजन, दैट इज Q2 आपको दिया है, Q2 12,000 किलोजूल पर आवर। ओके, आपको सब यूनिट किस में चाहिए, अभी आपको आंसर निकालना है किलोजूल पर आवर में, तो सब यूनिट किस में चाहिए आपको, किलोजूल पर आवर में, सब क्वांटिटीज। ओके, अभी नेक्स्ट क्या दिया है, व्हेन पावर इनपुट, मतलब अगर रेफ्रिजरेटर रन करना है तो हम इनपुट क्या देते हैं, वर्क डन। सो आपको वर्क डन दिया है कितने, 0.75 किलोवाट। अभी किलोवाट मतलब क्या होगा, किलोजूल पर सेकंड, मतलब आपको क्या दिया है, W इज इक्वल टू 0.75 किलो जूल पर सेकंड, लेकिन मुझे किस में चाहिए, किलो जूल पर आवर। ओके, सेकंड को आवर में कन्वर्ट करना है, मतलब क्या करना पड़ेगा, उसको डिवाइड करना पड़ेगा 3600। अभी सेकंड कहाँ पे है, नीचे में है, तो 3600 कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। मतलब आपका वर्क डन क्या होगा, 0.75 इंटू 60 इक्वल टू किलो जूल पर आवर। तो आपको वर्क इनपुट मिला 0.75 इंटू 60 किलो जूल पर आवर। ओके, अभी पूछा है COP का फॉर्मूला क्या है, ऑफ रेफ्रिजरेटर, आउटपुट क्या है, अमाउंट ऑफ हीट रिमूव्ड फ्रॉम द रेफ्रिजरेटर स्पेस, दैट इज Q2, और इनपुट क्या है, वर्क डन, दैट इज W। सो COP ऑफ रेफ्रिजरेटर इक्वल टू क्या हो गया, Q2 अपॉन W, बराबर है। Q2 आपको दिया है 12,000 और W भी पता है 0.75 इंटू 60, तो COP मुझे मिला 4.44। ओके, अभी पूछा क्या है, हीट ट्रांसफर रेट, मतलब जो ऊपर जा रहा है, मतलब बाहर जो सराउंडिंग के रेफ्रिजरेटर की सराउंडिंग में जो हीट जा रही है वो कितने होगी। तो नॉर्मली आपका नॉर्मल फॉर्मूला है, Q1 इक्वल टू क्या है, Q2 प्लस W, बराबर है। तो Q2 आपको पता है, W आपको पता है, तो मुझे क्या मिलेगा, Q1 इज इक्वल टू Q2 प्लस W। Q2 12,000 है, W 0.75 इंटू 60, सो मुझे मिल गया Q1 14,700 किलो जूल पर आवर। ओके, तो स्टार सॉल्व हो गया अपना सेकेंड न्यूमेरिकल। ओके, नेक्स्ट वी सी थर्ड न्यूमेरिकल। A Carnot cycle operates between सोर्स एंड सिंक टेम्परेचर। सोर्स मतलब क्या हो गया, अबोव वाला टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर। सिंक मतलब क्या हो गया, लोअर वाला टेम्परेचर। ओके, टेम्परेचर देखो कितना दिया है, 250 डिग्री सेल्सियस एंड -15 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो T1 दिया है आपको 250 डिग्री सेल्सियस और T2 दिया है -15 डिग्री सेल्सियस। ओके, लेकिन टेम्परेचर जो है वो किस में लेना है आपको, केल्विन में लेना है, बराबर है। तो केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, हम उसको 273 ऐड कर देते हैं। तो T1 क्या होगा, 250 प्लस 273, मुझे कितना मिला, 523 केल्विन। T2 कितना है, -15 प्लस 273, तो मुझे मिला 258 केल्विन। T2 मिल गया। ओके, T1 मिल गया, T2 मिल गया। ओके, उसके बाद क्या दिया है, इफ़ द सिस्टम रिसीव्स 90 किलो जूल फ्रॉम द सोर्स, मतलब क्या है, सोर्स से क्या कर रहा है, 90 किलो जूल ऑफ हीट क्या कर रही है, एब्सॉर्ब हो रही है। मतलब एरो कहाँ से आ रहा है, सोर्स से हीट डिवाइस ने क्या कर दी, एब्सॉर्ब कर दी। ये कहाँ पे होता है, इंजन में ही एब्सॉर्ब करता है हीट सोर्स से। ओके, तो ये क्या हो गया, डिवाइस अपना कौन सा है, इंजन है। सो हीट जो दी है वो कौन सी होगी, Q1 होगी। Q1 इज इक्वल टू 90 किलो जूल, बराबर है। अभी पूछा क्या है, इफिशियंसी। ओके, इंजन के इफिशियंसी के फॉर्मूला में अभी देखो, एक तो इंजन का आउटपुट है वर्क डन और इनपुट क्या है, हीट सप्लाई। सो W अपन क्या होगा, Q1 होगा, बराबर है।
W मतलब क्या होता है Q1 माइनस Q2 बराबर है, अपन क्या होगा Q1 होगा, तो Q1 से डिवाइड कर दिया तो क्या होगा 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 बराबर है। टेम्परेचर के हिसाब से इक्वेशन क्या होगा 1 माइनस T2 अपॉन T1। ओके, तो इक्वेशन आ गया 1 माइनस T2 अपॉन T1, T2 डाल दिया T1 डाल दिया, तो मुझे क्या मिल गई इफिशियंसी मिल गई। ओके, अभी पूछा क्या है वर्क ट्रांसफ़र। इफिशियंसी का पहला वाला फॉर्मूला आउटपुट बाय इनपुट वर्क डन अपॉन हीट सप्लाई। सो इफिशियंसी इज इक्वल टू क्या होगा W अपॉन Q1। इफिशियंसी तो निकाल दी है मैंने और Q1 भी दिया है, सो W इज इक्वल टू क्या होगा इफिशियंसी इंटू Q1, इफिशियंसी इंटू Q1। सो मुझे क्या मिल गया W मिला, वर्क मिला। अभी पूछा क्या है हीट रिजेक्टेड, मतलब पूछा क्या है Q2। सो Q1 इज इक्वल टू क्या होता है W प्लस Q2। सो Q2 इक्वल टू क्या होगा Q2 इक्वल टू क्या होगा Q1 माइनस W बराबर है, तो उसमें डाल दिया इक्वेशन में, तो मुझे क्या मिला 90 माइनस 45.54 इक्वल टू 44.46 किलो जूल, दैट इज अ Q2। ओके, तो थर्ड न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। ओके, नेक्स्ट न्यूमेरिकल हीट पंप इज यूज्ड टू मेंटेन हाउस एट 23 डिग्री सेल्सियस। ओके, अभी जो हीट पंप है वो क्या करता है हीट लोअर टेम्परेचर से कहाँ भेज देता है हायर टेम्परेचर के लिए एट द एक्सपेंस ऑफ वर्क एनर्जी। मतलब देख कंसिडर करते हैं हमारी रूम, ओके विंटर सीजन है, ओके तो हमें रूम को हीट करना है, तो हम जो हीट है वो सराउंडिंग में जो लोअर टेम्परेचर है उससे ही मैं क्या करूँगा हीट एब्सॉर्ब करूँगा और वो किसको दूंगा रूम को दूंगा, जिससे कि रूम मेरी क्या हो जाए हीटेड हो जाए बराबर है। लेकिन रूम बाहर का जो सराउंडिंग कोल्ड है तो मेरी रूम क्या होगी सराउंडिंग को हीट ट्रांसफ़र कर देगी बाद में बराबर है। तो इसमें जो तुम्हारा हॉट रिजर्वायर वो क्या है रूम है और कोल्ड रिजर्वायर है वो अपने सराउंडिंग है बराबर है। अभी क्या करना है हीट पंप इज़ यूज्ड टू मेंटेन हाउस एट 23 डिग्री सेल्सियस। मतलब आपको T1 जो है कितना दिया है 23 डिग्री सेल्सियस, उसको मैंने केल्विन में कन्वर्ट कर दिया 23 प्लस 273 मिला कितना 296 केल्विन। ओके, अभी क्या बोला है देखो नेक्स्ट में द हाउस इज लूजिंग हीट टू आउटसाइड एयर थ्रू वॉल्स एट 60,000 किलो जूल पर आवर। मतलब आपकी जो रूम है वो 60,000 किलो जूल पर आवर हीट जो है सराउंडिंग को रिजेक्ट कर रही है बराबर। ड्यू टू कोल्ड वेदर क्या हो रहा है आपकी रूम कोल्ड हो रही है, मतलब कितने अमाउंट हीट वो ट्रांसफर कर रही है 60,000 किलो जूल पर आवर। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस क्या है while energy generated in the house by various appliances is 4000 किलो जूल पर आवर। मतलब क्या है रूम के अंदर जो अप्लायंसेस है लाइक आपका रेफ्रिजरेटर होगा, फ्री वॉशिंग मशीन होगी, एसी होगा, ओके या हीटर होगा, इस अप्लायंसेस से जो हीट जनरेट हो रही है वो कितनी है 4000 है। मतलब रूम के अंदर कितनी हीट जनरेट हो रही है 4000 और पंप कितना सप्लाई कर रहा है फिर 56,000, क्योंकि टोटल हीट कितनी रिजेक्ट हो रही है 60,000। ओके, रूम के अंदर कितनी जनरेट हुई है 4000, तो हीट पंप जो लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर हीट दे रहा है वो कितनी होगी फिर 60,000 माइनस 4000, मतलब कितना होगा 56,000। सो Q1 इक्वल टू क्या होगा 60,000 माइनस 4000 इक्वल टू क्या होगा 56,000 किलो जूल पर आवर। ओके, तो Q1 पता है और टेम्परेचर पता है। उसके बाद क्या दिया है फॉर अ COP ऑफ 1.5 फाइंड रिक्वायर्ड पावर इन किलोवाट। अभी पावर किस में पूछी है आपको किलोवाट में पूछी है बराबर है, तो उसको वर्क डन भी किस में चाहिए पूछे हमें पावर मतलब वर्क डन। ओके, तो अभी COP ऑफ पंप क्या होता है अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसपोर्ट टू द हायर टेम्परेचर रीजन, दैट इज कितनी दी है आपको 56,000। ओके, तो मेरा आउटपुट क्या हो गया 56,000, इनपुट क्या होगा वर्क डन W। ओके, लेकिन COP आपको दिया है 1.5। ओके, तो मुझे क्या मिलेगा उससे वर्क डन ओके 37,333.33 किलो जूल पर आवर। लेकिन आउटपुट किस में चाहिए किलोवाट, अभी ये आवर है 1 आवर इक्वल टू कितना होता है 3600 सेकंड, तो उसको मैंने 3600 से डिवाइड कर दिया, तो मुझे वर्क डन कितना मिला 10.37 किलोवाट। ओके, समझ गए। अभी स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। ओके, न्यूमेरिकल क्या दिया है द COP ऑफ रेफ्रिजरेटर, सिमिलरली रेफ्रिजरेटर है। ओके, रेफ्रिजरेटर मतलब क्या होता है अमाउंट ऑफ हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रेफ्रिजरेटेड स्पेस और लोअर रीजन दैट इज Q2
आउटपुट इज अ Q2 और इनपुट इज अ वर्क डन। ओके, तो हमें रेफ्रिजरेटर का क्या दिया है, COP6 दिया है। व्हेन इट मेंटेन्स द टेम्परेचर ऑफ 270 K इन द इवेपोरेटर। अभी टेम्परेचर कहाँ मेंटेन करते हैं हम, रेफ्रिजरेटर स्पेस में, मतलब लोअर रीजन में, लोअर टेम्परेचर में। सो हमें जो टेम्परेचर दिया है वो क्या होगा, T2 दिया है, कितना दिया है, 273 केल्विन। ओके, पूछा क्या है, कंडेंसर का टेम्परेचर, मतलब पूछा क्या है, T1 का टेम्परेचर। ओके, और पूछा क्या है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, दैट इज अमाउंट ऑफ हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लोअर रीजन, दैट इज Q2 पूछा है। मतलब क्या क्या पूछा है, T1 पूछा है और Q2 पूछा है। और क्या दिया है, इफ द पावर रिक्वायर टू रन द रेफ्रिजरेटर इज 7.5 किलोवाट। मतलब क्या दिया, वर्क डन दिया है। ओके, अभी फॉर्मूला क्या है, COP ऑफ रेफ्रिजरेटर का, आउटपुट इसमें क्या है, अमाउंट ऑफ हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रेफ्रिजरेटर स्पेस, दैट इज Q2, और इनपुट क्या है, W। सो COP ऑफ रेफ्रिजरेटर इक्वल टू क्या होगा, Q2 अपॉन W। ओके, तो यहाँ पे मुझे Q2 तो पता नहीं है, लेकिन W पता है 7.5 किलोवाट, और COP पता है, तो मुझे क्या मिलेगा, Q2 दैट इज रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, दैट इज अमाउंट ऑफ हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रेफ्रिजरेटर स्पेस। सो Q2 इक्वल टू कितना मिला, 45 किलोवाट। ओके, अभी पूछा क्या है मुझे, कंडेंसर टेम्परेचर दैट इज T1 बराबर है, COP ऑफ रेफ्रिजरेटर का फॉर्मूला क्या है, Q2 अपॉन W। W मतलब क्या होता है, Q1 माइनस Q2। सो COP ऑफ रेफ्रिजरेटर इक्वल टू Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2। ओके, टेम्परेचर के हिसाब से क्या होगा, T2 अपॉन T1 माइनस T2 बराबर है। COP ऑफ रेफ्रिजरेटर तो आपको पता है, बराबर है, T2 पता है, तो मुझे क्या चाहिए, सिर्फ T1। तो वहाँ से मुझे क्या मिलेगा, T1 315 केल्विन। ओके, नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या दिया है, और रिवर्स द हीट इंजन। ओके, क्या है, हीट इंजन। ओके, वर्किंग एज अ रेफ्रिजरेटर, मतलब क्या है, हीट इंजन को रिवर्स कर दिया तो क्या हो गया, वो डिवाइस रेफ्रिजरेटर हो गया। ओके, तो हमारा न्यूमेरिकल है रेफ्रिजरेटर के ऊपर, एब्सॉर्ब्स हीट फ्रॉम लोअर टेम्परेचर रीजन ऑफ 650 किलोजूल। मतलब क्या दिया है, अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब फ्रॉम लोअर टेम्परेचर रीजन, दैट इज अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब फ्रॉम रेफ्रिजरेटर स्पेस, दैट इज आपको दिया है Q2 650 किलोजूल। व्हेन वर्क इनपुट मतलब W दिया है 250 किलोजूल, फाइंड इट COP। COP मतलब क्या है, आउटपुट बाय इनपुट। आउटपुट मतलब क्या है, अमाउंट ऑफ हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रेफ्रिजरेटर स्पेस, दैट इज Q2। ओके, और इनपुट क्या है, W। Q2 अपन W, Q2 पता है 650, W पता है 250, तो मुझे COP ऑफ रेफ्रिजरेटर क्या मिल गया, 2.6 बराबर है, हो गया। अभी पूछा क्या है नेक्स्ट, फाइंड इट COP निकाल दी। अभी पूछा है हीट ट्रांसफर टू द सराउंडिंग, मतलब क्या है, हीट ट्रांसफर टू द हायर टेम्परेचर रीजन। W इक्वल टू क्या होता है, Q1 माइनस Q2। ओके, तो Q1 इक्वल टू क्या होगा, W प्लस Q2। W आपको पता है, Q2 आपको पता है, तो मुझे क्या मिलेगा, Q1 900 किलो जूल बराबर है। मतलब हीट ट्रांसफर टू द सराउंडिंग क्या मिल गया, 900 किलो जूल। ओके, अभी क्या पूछा है नेक्स्ट एग्जांपल, इफ इट इज हीट पंप, अगर वो डिवाइस हीट पंप होगा, हीट पंप होगा तो क्या होता है, अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर टू द हायर टेम्परेचर रीजन, दैट इज Q1। COP ऑफ हीट पंप इज इक्वल टू क्या होता है, आउटपुट Q1 और इनपुट क्या होता है, W। सो Q1 आपको 900 किलो जूल पता है और W आपको पता है 250 किलो जूल। सो COP ऑफ हीट पंप कितना मिला, 3.6। अगर वो इंजन होता तो इंजन का आउटपुट क्या होता है, वर्क डन, और इनपुट क्या होता है, हीट सप्लाई, दैट इज Q1। सो W अपन क्या होगा, Q1। W आपको पता है 250 और Q1 पता है आपको 900। सो इफिशियंसी मिल गई 0.2778, लेकिन इफिशियंसी परसेंटेज में चाहिए, तो मुझे कितना मिला, 27.78%। ओके, तो दिस टाइप ऑफ न्यूमेरिकल ask for this second law of thermodynamics, like devices, heat engine, heat pump, refrigerator. Okay, so prepare or study these types of numericals. Okay, thank you.